Okay, just zoom the question, Snehal. Zoom little. Yes. Okay. So first question you are telling, right? Yes, sir. Okay. You can you remain unmuted. Okay, so that I can you can respond. ठीक है. So question is, judge the. You read the question once again. Just the equivalent resistance when the following are connected in parallel. 1 ohm and 10 to power 6 ohm. Second is 1 ohm and 10 to power 3 and 10 to power 6 ohm. ये क्वेश्चन है ना. Yes, sir. 1 ohm and 10 to the power 6 ohm. B 1 ohm and 10 to the power 3 ohm and 10 to the power 6 ohm. Okay. So these there are we have these three combination and we need to judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel. We need to judge them. Okay. So good morning, Ravi. Are you getting my Good voice, morning, Ravi? sir. Yes, sir. Okay. So Ravi, we have discussed uh, because this is fifth or sixth class. Till now, we have discussed what is charge, what is electric current, what is electric potential. Then we have discussed Ohm's law. After that, we have discussed what is electrical resistance, and then we are discussing now the series and parallel combination of electrical resistance. Yesterday we have discussed parallel combination, and now we are discussing the question on parallel combination. These questions are from NCRT. Page number, what is the page number, Snehal? Can you tell me? 216. Yeah, it's page number 206. The PDF I have already shared Sir, on 16. that. Okay, no problem. 216. 216 page number. The same PDF I have shared on the group also. Okay, Ravi. Ravi, are you able to hear me? Yes, sir. So, have you any idea about parallel combination of resistance? No, sir. You don't have any idea. Okay. So, just wait. I will discuss this question. Then I will. Uh, okay. Snehal, just move up. Just show the parallel combination figure so that I can explain once again. Yeah. See, Ravi, this is the parallel combination. In parallel combination, Acha, Ravi, do you know what is resistance? Yes, sir. For some for some time, Snehal, you mute yourself, and I will talk to Ravi for some time. And Ravi, you remain unmuted for some time. Okay, sir. Don't stop sharing, Snehal. You just yeah, okay. So Ravi, do you know what is resistance? Yes, sir. And do you know what is Ohm's law? Ohm's law. No, sir. Ohm's law. No. Okay, no problem. Snehal, please come to the Ohm's law. Please come to the Ohm's law first. Just go up little more. No, you are going down, I think. Just go up. Yeah. Go up little more.
little more, little more. Yes, little more. Yes, yes. This is Ohm's law. And Ravi, do you have any idea about electric current and electric charge? Yes, sir. And do you have any idea about electric potential? Potential, no, sir. Oh, सी जैसे कि आपने आपने देखा होगा कि पाइप में पानी फ्लो करता है, तो पाइप Yes, में sir. पानी फ्लो कैसे करता है? जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहां से लो प्रेशर की ओर फ्लो करता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा Yes, कि sir. पाइप में जो वाटर है वो आपके ग्राउंड फ्लोर से अप फ्लोर पे खुद ब खुद जाएगा, उसके लिए आप मोटर लगाते हो तब वो ऊपर जाता है। ठीक है, तो Yes, मोटर sir. क्या काम करता है? मोटर काम करता है, बस आप समझो कि मोटर वहां पे प्रेशर क्रिएट करता है, तभी हमारा पानी नीचे से ऊपर की ओर जा पाता है। इसी तरह से जो हमारे सर्किट में सेल होता है, बैटरी होता है, वो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। जिस तरह से पानी को फ्लो करने के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए, हवा को भी फ्लो करने के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, या आप यूं कह लो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए, वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस, and that potential difference can be created with the help of cell or battery. ठीक है रवि? Yes, sir. अब और क्या होता है, जितना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट करोगे उतना अधिक चार्ज फ्लो करेगा। सेम वे, जितना अधिक प्रेशर रहेगा उतना अधिक पानी फ्लो करेगा। आप यदि घर में आपने 1 HP का मोटर लगाया है तो पानी बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। आप वहां पे यदि 0.5 HP का लगाओगे तो पानी धीरे जाएगा। यदि आप 2 HP का लगा दोगे मोटर तो पानी और तेजी से ऊपर जाएगा। सिमिलरली यदि आप किसी सर्किट में 2 वोल्ट का बैटरी लगाओगे तो करंट फ्लो करेगा, 4 का लगाओगे और फास्ट करेगा, 8 का लगाओगे और फास्ट करेगा। यदि आपने 1 का लगा दिया तो थोड़ा धीरे फास्ट फ्लो करेगा। इस तरह से ये जो है हमारा वैल्यू ऑफ करंट जो है इस तरह से वेरी करेगा, वो वेरी करता है इस पे पोटेंशियल डिफरेंस पे। इसी को बोलते हैं हम लोग ओम्स लॉ। गॉट द आइडिया रवि? Yes, sir. मीन्स क्या हुआ? जस्ट मूव लिटिल डाउन स्नेहल। these are the activity, you have to refer this activity. Move down. Come to the statement where Ohm's law is written. Yes, this equation, just up, little up, little little up, Snehal, not down, little up. Yes, here. Just zoom it. See. Okay, see. Ravi, you see here. This you see just second last sentence. The potential difference V, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर। किसी वायर के अक्रॉस में जो V पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। उसमें जो करंट फ्लो करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या इसके उल्टा भी बोल सकते हो कि जो करंट फ्लो करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, राइट? इसको मैथमेटिकली क्या लिख रहे हैं हम लोग? This is called Ohm's law. In other word, V proportional to I. In other word, potential difference proportional to I. तो जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो आप एक कांस्टेंट लेते हो, तो क्या लिखोगे? V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू I। फिर आप I को इधर लेके आओगे तो V अपॉन I हो जाएगा और वो कांस्टेंट इधर आ जाएगा राइट साइड में। यहाँ तक क्लियर हुआ रवि आपको? Yes, sir. वेरी गुड। इसी कांस्टेंट को बोलते हैं आर, और वही आर होता है रेजिस्टेंस। V इक्वल टू आई आर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया 12.5। इसी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, V पोटेंशियल है, आई हमारा करंट है, आर हमारा रेजिस्टेंस है। तो V इज इक्वल टू आई आर इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, राइट रवि? Yes, sir. अब यहाँ पे आर जो है ये आर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक मेटल का प्रॉपर्टी होता है, जिस तरह से वुमेन का प्रॉपर्टी होता है ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी,
ट्रूथनेस। इस तरह से रजिस्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, रजिस्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, किसी भी मेटालिक वायर का प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस, और उसी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और रेजिस्टेंस को हम, मतलब वायर को हम या तो सीरीज में ऐड करेंगे या पैरेलल में ऐड करेंगे। जस्ट कम टू द फिगर, स्नेहल, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। Not activity, just come to the figure. Means series connection. Yeah. Okay. We can use this figure also. Some of the figure again. Yes. See, Ravi. Here R1, R2, R3, R3 conductor. Means XY, XP, then PQ. Sorry, XP is R1, QS is R2, and PY is R3. There are three resistors whose resistance is R1, R2, and R3. These are connected in series. When we call in series, when one, देखिए यहाँ पे आप R1 जो है इसका एक एंड R2 के एक एंड से जुड़ा हुआ है, और R2 का दूसरा एंड R3 के पहले एंड से जुड़ा हुआ है। ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वो सीरीज करें, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये चीज समझ में आया रवि आपको? Yes, sir. कम टू द नेक्स्ट फिगर, स्नेहल। अब आप देखिए, ये हमारा है थोड़ा ये सीरीज हो गया, ये हमारा उसके बाद है पैरेलल। थोड़ा आप जूम कम करके मूव करो। हाँ, ये पैरेलल है, देखना यहाँ पे रवि। यहाँ पे हमारे पास अगेन तीन रजिस्टर है, LM, PQ एंड ST। हमारे पास तीन रजिस्टर है। LM का रेजिस्टेंस R1 है, PQ का रेजिस्टेंस हमारा R2 है, एंड ST का रेजिस्टेंस हमारा R3 है। ये तीनों रजिस्टर्स यहाँ पे पैरेलल में है। क्यों हमने कहा ये पैरेलल में है? क्योंकि तीनों का एक एंड X पे जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड Y पे जुड़ा हुआ है। जस्ट जूम द फिगर, स्नेहल, just zoom the figure. Okay, wait. So, have you got the idea, Ravi? Yes, sir. Have you got the idea about parallel combination? Yes, sir. This figure 10 is showing parallel combination. Means we have got the idea about Ohm's law, and you have Yes, got sir. the idea about resistance, then series combination and parallel combination. ठीक है, ये होता है हमारा parallel Okay, combination sir. और पहले होता है series combination. Snehal, just show me the formula for both the combination. First, show me the formula for this parallel combination. Till then, good morning, Nayan Raj. Nayan Raj, are you getting my voice? Nayan Raj, you can unmute yourself and reply. Yes, sir. Good morning, Nayan. Good morning, sir. In which class you are? Seventh. So you will be moving to 8th class. Yes, sir. Yes? Okay. Okay, you can mute now. Okay, Ravi. See, so just zoom the formula. Come to the formula only. This 12.18. Yes. See, Ravi. यदि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे? आपने वहां देखा तीनों हमारा, थोड़ा और जूम कर दो स्नेहल।
हाँ, आप देखिए फॉर्मूला को, जो हमारा लास्ट फॉर्मूला यहाँ पर है, 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्या होता है, मीन्स आपके पास R1 है, R2 है, R3 है, इसका आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना रेजिस्टेंस होगा वो निकालना है। आप क्या करोगे, तीनों को आप रेसिप्रोकल कर दोगे और उसको ऐड कर दोगे, वो वैल्यू Yes, होगा sir. आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेसिप्रोकल का। मीन्स रजिस्टर द जो हमारा 10, यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको लेफ्ट मूव करो सर, ताकि मैं पढ़ पाऊँ उसको अच्छे से। ठीक है, ओके, यहाँ पढ़ना आप। Thus, we may conclude that the reciprocal of equivalent resistance, ध्यान देना आप, reciprocal of equivalent resistance of a group of resistors of a group of resistance joined in parallel is equal to sum of the reciprocal of individual resistor। हमारे पास जितने भी इंडिविजुअल रजिस्टर है सबको आप रेसिप्रोकल कर दो, उसको आप ऐड कर लो, वो जो वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू होगा हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेसिप्रोकल का। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, तो अब आ जाओ, अब हम लोग जो है, अब क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। उस वाले क्वेश्चन को अब आई थिंक समझ में आएगा, रवि आपको भी समझ में आएगा आपकी। ठीक है, सो हियर सुभाष, गुड मॉर्निंग सुभाष। सर मैं शांत हूँ। संत, यस सर। व्हाट अबाउट सानिया, व्हाट अबाउट सानिया? Yes, sir. बोथ आर दिगर, ओके सर, ओके ओके। सो संत, हैव यू गॉन थ्रू दीज क्वेश्चंस? थोड़ा नीचे कर लो स्नेहल, थोड़ा सा नीचे कर लो। यस, ओके 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 डॉन। So have you gone through this question, Sant and Dasania? यस सर। तो ये जो पहला क्वेश्चन है बन गया आपको? सानिया, No, ये पहला sir. क्वेश्चन बन गया? नो बना, ठीक है, चलिए। ठीक है, अभी मैं आपको केवल इसका हिंट कर रहा हूँ और आप लोग अपना पेपर और पेन ले लीजिए, आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा यहाँ पे। मैं सॉल्व कर दूंगा तो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आप उसको सीख नहीं पाएंगे अच्छे से। मैं चाहता हूँ कि आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं आपको हिंट करूंगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ देखिए, करा है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन फ्लोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी हमने डिस्कस किया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। यस रवि? Yes, sir. अब देखिए, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है फिर से जूम, उसको मोबाइल को आप रखिए इस तरह से घुमा करके रखिए स्नेहल, और थोड़ा जूम कीजिए क्वेश्चन को। गुड मॉर्निंग रोनित। रोनित, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Ronit, are you getting my voice? Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। स्नेहल, आपसे यदि टर्न नहीं हो रहा तो एक बार इसको आप शेयरिंग स्टॉप करके फिर से शेयर करो, ठीक हो जाएगा। रोनित एंड Yes, sir. नयन, आप लोग को टाइम पे आना है, ठीक है? यदि क्लास 7 बजे से है और आप 7:05 तक अलाउ मैं करूंगा, उसके बाद मैं कल से अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है? उसके बाद मैं आपको क्लास में एडमिट नहीं करूंगा। यदि आपको पढ़ना है तो आप टाइम पे आइए, 7 बजे आइए, ठीक है? 2-4 मिनट 5 मिनट मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन इतना देर नहीं कि आप आधा घंटा के बाद आ रहे हैं। यस रोनित? Yes, sir. एंड दिस इज फॉर ऑल। Yes. ओके, अभी आपको रोनित समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप क्लास के बीच में आए हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी आप देखो, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप फिर कल से कंटिन्यू करना, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, मैं इसमें हिंट कर रहा हूँ आपको, कह रहा है कि जज द, थोड़ा नीचे कर लो स्नेहल, इसको हल्का सा नीचे कर लो। यस,
जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये पैरेलल में है। क्या है? पहला 1 ओम एंड 10 टू पावर 6 ओम पैरेलल में है। तो मुझे आप सानिया बताओ कि इसको पैरेलल में जो होगा आरपी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1 का ए में आरपी यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल कैसे निकालेंगे हम लोग? नहीं मालूम सर। सानिया नहीं मालूम। संत आप बता पाएंगे? नो सर। स्नेहल कैन यू टेल दिस? कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूँ इसको। देखिए अभी हमने पढ़ा 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री। हमारे पास यहाँ पे दो ही है तो हम लिखेंगे 1 बाय फॉर ए। मैं एक क्लियर कर रहा हूँ। जो पहला पार्ट है ए 1 ओम एंड 10 टू पावर 6 ओम। 10 टू पावर 6 का मतलब हुआ 10 पर 1 पर 6 जीरो, मतलब 1 पर 6 जीरो मतलब कितना हुआ? 10 लाख, राइट। एक 1 ओम है, दूसरा 10 लाख ओम है। आप लिखोगे 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 10 लाख। यस संत? यस सर। आप कॉपी और पेन लेके लिखो 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 10 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 10 लाख। रवि ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। हाँ ये हुआ ए का। सिमिलरली बी में क्या लिखोगे आप? बी में हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है तो आप क्या लिखोगे? 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 10 टू पावर 3 प्लस 1 बाय 10 टू पावर 6। यस रवि? यस सर। बी में हम लोग क्या लिखेंगे? 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 10 टू पावर 3 प्लस 1 बाय 10 टू पावर 6। यस सर। ये क्लियर हुआ संत आपको? यस सर। ओके तो निकालिए, वैल्यू निकालिए आप फिर दोनों का। ए का वैल्यू निकालिए और बी का वैल्यू निकालिए और बताइए मुझे वैल्यू कितना आ रहा है। तो अगर मैं नयन से बात करता हूँ, नयन ने हैंड रेज किया है। नयन डू यू वांट टू से समथिंग, आस्क समथिंग? Yes, sir. Nayan, are you getting my voice? Yes, sir. Do you want to ask something? No, sir. Then lower your hand. Your hand is raised. Your electronical hand. I want to say. Just touch on those 3 dots and touch on lower hand. Your hand will be lowered. So, Ravi, have you done that question? No sir, 1 minute. Okay, I'm waiting. Yes, Ravi, have you done the question? Ravi, Sir, I'm first. asking you. Sir, first. Yes, Sir, tell me. first question.
कितना हुआ आया? सर 10 lakh 1 upon 10 lakhs. वेरी गुड, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट सेकंड? तो सेकेंड अभी पर सॉल्व नहीं किया हूँ। जल्दी से करके बताइए। एंड व्हाट अबाउट संत? सर कर रहा हूँ सेकंड। सानिया आप कर रहे हो ना? सानिया यस सर। कितना है आपका? स्कैन कर रहे हैं। व्हाट अबाउट स्नेहल? स्नेहल यू कैन स्टॉप शेयरिंग नाउ। Yes, sir, I am doing. ओके, जस्ट डू इट फास्ट। सर फर्स्ट का आंसर 10 लाख है। 10 लाख 1 अपॉन 10 लाख। यस सर। वो आंसर नहीं है बेटा, वो है 1/RP का आंसर। ठीक है? यस मैंने फर्स्ट वाला का पूछा। हाँ, फर्स्ट का ए जो होगा 1/RP इज इक्वल टू 10 लाख 1 अपॉन 10 लाख, राइट? यस सर। और सेकंड वाले का आंसर कितना होगा? आंसर नहीं मैं बोलूँ उसको, मैं बोलूंगा 1/RP इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन में 1/RP इज इक्वल टू 10 लाख 1 अपॉन 10 लाख आया। सेकंड क्वेश्चन में 1/RP इज इक्वल टू आप करोगे तो कितना होगा ये? 10 लाख 1001 अपॉन 10 लाख। यस रवि? यस सर। संत, सानिया, टेल मी यस सर। कितना आया पहला का? पहला का सर 1 लाख बाय 1 लाख 1। हाँ, आरपी का वैल्यू होगा वो, है ना? जी। दूसरा का? दूसरा का 1 लाख 1001 बाय 1 लाख। वो 1/RP का वैल्यू बोल रहे हो आप? यस, ये आपको जो वैल्यू बोल रहे हो ये 1/RP का वैल्यू बोल रहे हो, है ना? संत? सर मुझे उतना ही निकला है। हाँ, तो ये जो वैल्यू निकला है ये 1/RP का वैल्यू है ना? यस सर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो यदि आप आरपी निकालोगे उससे तो उसका उल्टा हो जाएगा। यदि सपोज कि 1/RP इज इक्वल टू 10/5 है तो आरपी क्या होगा? 5/10 हो जाएगा, उल्टा होगा ना उसका। यस सर। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। क्या रवि, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो पहले ए में क्या हो गया? 1 लाख अपॉन 1 लाख 1। और बी में क्या हो गया? आरपी इज इक्वल टू 1 लाख 1,01,000, मतलब 1 लाख अपॉन 1,01,001। ठीक है? ठीक है रवि? यस सर। स्नेहल यू टेल मी। यस सर। अब आप मुझे बताओ, एक बार आप 1 लाख में 1,001 से डिवाइड कर रहे हो अपने ए में, और बी में आप 1 लाख में 1,01,001 से डिवाइड कर रहे हो, तो कौन बिगर होगा, ए वाला या बी वाला? जब हम किसी नंबर में अधिक से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कम होता है उसका। यस सर। तो आपका ए वाला अधिक होगा या बी वाला अधिक होगा? बी।
कौन सा अधिक होगा? B. नहीं बेटे, देखो बी में क्या हुआ है, बी 1/RP है 1,01,001 अपॉन 1,00,000, तो आरपी क्या हो जाएगा उसका उल्टा, यानी 1,00,000 अपॉन 1,01,001। तो बी में आप 1,00,000 में 1,01,001 से डिवाइड कर रहे हो, और ए में क्या लिखा आपने 1/RP इक्वल टू 1,00,000 अपॉन 1,01,001, तो आरपी क्या हो जाएगा 1,01,001 अपॉन, आर यू गेटिंग द पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो आप मुझे बताओ इसमें से आप ए में जो है 1,01,001 से डिवाइड कर रहे हो और बी में जो है 1,01,001 से डिवाइड कर रहे हो, और दोनों में जो ऊपर है जो नोमिनेटर है वो 1,00,000 ही है, तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? सर A बड़ा होगा। यस, ए बड़ा होगा क्योंकि आप ए में छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, और बी छोटा होगा क्योंकि आप बी में बड़े नंबर दैट इज 1,01,001 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, यही आपको डिस्कस करना था। अब देखिए रवि, आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. एंड संत एंड सानिया, आर यू गेटिंग मी? यस सर। वेरी गुड। अब आप समझिए, यहाँ पे आपने बी में क्या किया था, आपने बी में 3 रेजिस्टेंस लिया था 1, 1,000 एंड 10,00,000, लेकिन फिर भी वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। और आपने ए में 2 ही रेजिस्टेंस लिया था 1 एंड 1,000, फिर भी वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब क्या होता है, पैरेलल में आप जितना अधिक रेजिस्टेंस ऐड करोगे वो उतना कम होगा, सीरीज में जितना अधिक ऐड करोगे उतना अधिक होगा, लेकिन पैरेलल में जितना अधिक रेजिस्टेंस ऐड करोगे उतना वो कम होता जाएगा। हैव यू गॉट द आइडिया अबाउट दिस? ये आपको समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्नेहल आई थिंक क्लियर हुआ। Yes, sir. डू यू हैव प्रॉब्लम इन अदर क्वेश्चन आल्सो? Sir, I have not done. व्हाट अबाउट संत एंड सानिया? यस सर। आपने बनाया क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3? यस सर। तो उसमें डॉट है या बन गया आपसे? सर थर्ड का। ठीक है, एक बार क्या करोगे आप इसको दोबारा पढ़ोगे, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जितने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसको आप सॉल्व करोगे और दोबारा फिर से इसको ट्राई करोगे, जैसा मैंने अभी बताया फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे आप ट्राई करोगे। आई होप आपसे ये बन जाएगा। ठीक है रवि? Yes, sir. पीडीएफ मैंने शेयर किया है और प्रीवियस वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको आप देख करके इसको आप पढ़ के बनाएंगे। जो दिक्कत होगी हम इसको कल डिस्कस करेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, क्योंकि टाइम जो है 7 AM का मैंने रखा है, अब आप लोग 7 में आ जाएंगे। रवि, आपको साथ में आने को दिक्कत नहीं है ना 7 बजे आने में? No, sir. एंड संत एंड सानिया? नो सर। ठीक है, आज आदित्य नहीं है, उसके बाद लोकेश भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन किया वो लोग, बट मैं उससे पूछ लूंगा। तो क्लास का टाइमिंग हम लोग अभी 7 बजे रख रहे हैं, क्योंकि 8 बजे से मतलब कि 8 तो नहीं, 7:45 बजे से ही दूसरा मेरा क्लास है। ठीक है, कुछ दिन का है वो, अभी योगा वाला क्लास शुरू हुआ है, वो करवा रहे हैं। तो अभी आप लोग का जो 2-3 दिन के लिए आपका टाइमिंग रहेगा 7 से 7:50 ही। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कर लेंगे चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोग को कंप्लीट करना है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन उस पीडीएफ से, या आपके पास उसका हार्ड कॉपी है एनसीईआरटी के बुक का, उसको आप पढ़ेंगे, सारे सॉल्व को बनाएंगे और ये जो अनसॉल्व क्वेश्चन है इसको आप फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है संत? Okay, sir. ओके, सो ठीक है सर। for a while just switch on your camera so that I can see you all. Switch on your cameras. Okay Snehal, thank you. Okay Ravi, thank you. Okay Sant, thank you. Where is Sania?
Correct, Sania? ओके, सानिया बगल से देख रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है सानिया, ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड all the till take care all of you and bye bye for till tomorrow. We will meet again tomorrow at 7 a.m. Please come on time. Okay, thank you all of you. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye. Sir.